عادت بنی ہوئی ہے رہنے دو، نہیں، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، صرف اونٹ کا گوشت نہ کھانا، کیونکہ پرانی عادت دوسری، اس کے لیے پتا چل گیا کہ ایسا شخص اسلام میں پورا داخل نہیں۔ کیا مطلب؟ جب مسلمان ہو گئے تو صورت ہو یا سیرت دونوں میں مسلمان ہونا ہوگا، قول ہے یا فعل اس میں مسلمان ہوگا۔ گندے گلاس میں اچھا شربت ڈال کے نہیں پیتے ہو آپ، تو مشرکوں کی صورت بنا کر قرآن کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ وہ لوگ جو قرآن کے درس کے نام پر، قرآن کی تفسیر کے نام پر لوگوں کو بہکا رہے ہیں، طرح طرح کے نام رکھے، میڈیا میں آ گئے، خود پڑھنا نہیں آتا دوسروں کے لیے مبلغ مفسر بن گئے۔ بتائیے کیا یہ اسلام میں خود پورے داخل ہیں؟ ٹائی لگی ہو، ایک شخص کہہ رہا ہے میں ہندوستان میں رہتا ہوں، ہندو ہوں، اور ساتھ میں قرآن پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے شفاعت جائز نہیں، نبی کا اختیار نہیں، اور پھر اپنے آپ کو اسکالر کہہ رہا ہے۔ ارے جو میرے نبی کا نام ادب سے نہ لے ہم تو اس کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ جو میرے نبی کا ادب نہ کرے اس سے ہمارا کوئی تعلق اونچی، وہ ہماری نماز کا امام نہیں ہو سکتا، وہ ہمارے بچوں کا استاد نہیں ہو سکتا، ہم اس پر توجہ نہیں دے سکتے۔ جس کا مسلک درست نہیں، جس کا عقیدہ درست نہیں، وہ اسلام میں پورا داخل نہیں۔ سنیں، صرف اونٹ کا گوشت نہیں کھایا، فرمایا اسلام میں پورے داخل نہیں۔ آج ہمارے ظاہر اور باطن کا حال آپ کے سامنے، شکل یہودیوں جیسی، عیسائیوں جیسی، ہندوؤں جیسی، لباس ان کے پسند، مسلمان عورت بندیا لگانا بہت پسند کرتی ہے، ناخن بڑھانا بہت پسند کرتی ہے، کم کپڑے پہننا بہت پسند کرتی ہے، اللہ کی دی ہوئی پلکیں اور ابرو اس کو پسند نہیں، ان کو اپنے ہاتھوں سے اپنے ڈیزائن کا بنانا چاہتی ہے۔ آج آپ کو انہی کی باتیں پسند، تو کیا ہم اسلام میں پورے داخل ہیں؟ پھر زلزلے رک سکتے ہیں، سیلاب رک سکتے ہیں، مصیبتیں ٹل سکتی ہیں، سوچنا ہوگا۔ کراچی والوں، وہاں تو پھر شاید ان لوگوں کو کوئی سنبھالا مل گیا، تمہارے پاس تو رستہ ہی نہیں ہے بچنے کا، کس خواب و خیال میں ہو؟ اس جیسا اگر 2% جھٹکا یہاں آ گیا، یہاں تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ سوچو، مرنا ہے، ایسے نہ مرو کہ اپنی زندگی پر خود ہی افسوس ہو، ایسے تو جاؤ کہ ایمان کی شمع روشن ہو۔ تم نے اگر جائیداد نہیں بنائی تو کوئی بات نہیں، مگر تمہارے سینے میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہونی چاہیے۔ دوسرے دین دھرم کی رعایت کرنا یہ شیطان کے دھوکے میں آنا ہے۔ ہاں، دینی مدرسے نہیں ہوں گے، لاؤڈ اسپیکر کا استعمال دین کے لیے نہیں ہوگا، جہاد کا نام نہیں لیا جائے گا، جہاد کی کتاب نہیں بیچی جائے گی، جہاد کی آیت نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ کیا باتیں ہیں؟ یہ اسلام کی باتیں؟ اونچی تو سو کیوں رہے ہو؟ کس کے انتظار میں ہو؟ تم نے دوسروں کی خبر میں جانا ہے؟ اونچی، اپنی خبر یاد نہیں ہے؟ کس کو بھولے ہوئے ہو؟ سوچو، آج وہ لوگ جو یہ باتیں کر رہے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، انہوں نے بھی مرنا ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے انہیں آخرت کا یا موت کا وہ تصور نہ ہو، مگر تمہیں تو پتا ہے کہ قبر میں نبی کو منہ دکھانا ہے، تمہیں تو پتا ہے حشر میں رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وہاں کیا یہ عہدے کام آئیں گے؟ صدر صاحب وزیر اعظم بچانے آئیں گے؟ کیا وہاں رشوت چلے گی؟ سود چلے گا؟ اوریانی چلے گی؟
موسیقی اور بسنت کام آئے گی؟ میراتھن ریس عورت اور مرد اکٹھے سڑکوں پہ چلیں بازو میں بازو ڈال کے کام آئے گا؟ پھر ہم کس کے انتظار میں ہیں؟ کیا اور زلزلہ دیکھنا چاہتے ہو؟ اور سیلاب چاہتے ہو؟ تو پھر کب سنبھلو گے؟ یہ رمضان ملا تھا کہ اس میں اپنے آپ کو پاک صاف کر لیتے. مسجدیں ویران ہیں، نوجوانوں کے پاس نماز کا ٹائم نہیں، دوسروں کے پاس دکانداری کے لیے ساری رات ہے، رات کے 4-5 بجے تک دکان کھول لیں گے، صبح بیٹے کو بھیج دیا، دوپہر خود چلے گئے، رات بھی بیٹھے رہے. 10 منٹ مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھنی. عورتوں کا کیا حال، بچوں کا کیا حال. میں اور آپ سب اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈالیں، کیا ہم اسلام میں داخل ہیں؟ سوچنا ہوگا. ذرا ان کو دیکھو، ذرا ان کو دیکھو. تھوڑا سا پیچھے رک کرو، تھوڑا سا پیچھے رک کرو. وہ لوگ جو انسانی شکل میں درندے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ اپنے ہاتھوں خود دفن کرتے تھے، جن کے ہاں نسل در نسل لڑائی ختم نہیں ہوتی تھی. وہ لوگ جن کو نشہ اور عورت، اس میں کوئی تمیز نہیں تھی، کسی کا لحاظ نہیں کہ بیوی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، کیا ہے، عورت کی عزت نہیں تھی. اس معاشرے میں جہاں جام پر جام لنڈھائے جاتے تھے، میرے نبی پاک ایک صحابی سے کہتے ہیں، مکے کی گلیوں میں اعلان کر دو شراب حرام ہے. وہ مٹکے جو بھرے ہوئے تھے، وہ گلاس جو بھرے جا رہے تھے، وہ گلاس جو ہونٹوں تک آ چکے تھے، نہیں وہ چلو جو منہ میں ڈالا جا چکا تھا، سب نالیوں میں بہا دیا گیا. مٹکے توڑ دیے گئے، منہ میں بھری ہوئی شراب نکال دی گئی. کوئی قانون نہیں آیا، کوئی ڈنڈا نہیں آیا، کوئی فوج نہیں آئی، کوئی زلزلہ نہیں آیا. میرے نبی کا ارشاد، ادھر عمل ہوا. اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا. آج ہم اللہ کو کیوں ناراض کر رہے ہیں؟ ہمیں نہ اللہ کے حکم کا پاس، نہ نبی کی سنت کا پاس. ارے وہ کیسے لوگ تھے، وہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے نبی کی اداؤں کی خاطر جانیں قربان کر دی. وہ کیسے لوگ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنا ہی زندگی جانتے تھے. اور آج ہمارے ملک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں ہونے لگ گئیں، کتابیں چھپنے لگ گئیں، ٹی وی ریڈیو چیخنے لگ گئے. ہم اور بے غیرت بن کے چپ رہے. لوگ کہتے ہیں مولوی لڑتے ہیں. سنو، اس ملک میں اگر امن چاہتے ہو، اس ملک میں اگر بہاریں دیکھنا چاہتے ہو، زلزلوں اور آفتوں سے بچنا چاہتے ہو، تو ایک طریقہ ہے، اور وہ صرف اور صرف یہ طریقہ ہے، تم نبی کا ادب کرنے لگ جاؤ، اللہ کی رحمت تمہیں اپنی آغوش میں لے لے گی. اللہ وہ لوگ جو نبی کے بارے میں یہ کہتے ہیں نبی نور نہیں، وہ یہ جو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، وہ یہ جو کہتے ہیں نبی کچھ نہیں جانتا، وہ یہ جو کہتے ہیں نبی کچھ نہیں کر سکتا، ایسے لوگوں نے یہ ملک نہیں بنایا. یہ ملک ان لوگوں نے بنایا ہے جن کی زبان پر صبح بھی، جن کی زبان پر شام کو بھی، جن کی زبان پر دن کو بھی، جن کی زبان پر رات کو بھی، جن کی زبان پر محفل میں بھی، جن کی زبان پر تنہائی میں بھی صرف یہ ہوتا ہے سب سے اولا اعلی. ذرا ایمان کا مظاہرہ، سب سے اولا اعلی، سب سے بالا والا.
میرے دوستوں اور بزرگوں، جو نبی کی نعت پڑھتے ہیں وہ منہ سلامت رہتے ہیں، جو نبی کے دین کی خدمت کرتے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ آج پوری دنیا میں کوئی یزید پلید کا دن منانے والا نہیں، کوئی فرعون اور نمرود کی یادگار قائم کرنے والا نہیں، کوئی شداد اور حامان کے نقش قدم پر چلنے والا نہیں، مگر دیکھو گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بڑی شان، ہمیں کوئی صدیق اکبر کا غلام نظر آ رہا ہے، کوئی فاروق اعظم کی اداؤں پر مٹ رہا ہے، کوئی عثمان غنی کے نقش قدم پر چل رہا ہے، کوئی مولا علی پر فدا ہو رہا ہے، کوئی حسنین کی یاد منا رہا ہے، کوئی امام اعظم، کوئی غوث اعظم، خواجہ غریب نواز، خواجہ سہرورد، خواجہ نقشبند۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبی کے غلام بنے، ہم سب کے امام ہو گئے۔ اللہ ہمیں آج کہا جاتا ہے یہ مزار، یہ آستانے، یہ خانقاہیں، یہ شرک بدعت حرام کی جگہ ہیں۔ سنو، ان کو شرک بدعت حرام کی جگہ کہنے والوں اپنی زبانوں کو لگام دے دو۔ آج کوئی فاروق اعظم کا غلام نہیں ہے جو ان کی زبانیں گدی سے کھینچ لے، لیکن ہم حکومت کو بتا دینا چاہتے ہیں سنیوں نے یہ ملک بنایا ہے، انشاءاللہ سنی ہی اس کو بچائیں گے، اور ہم سنی امن پسند لوگ ہیں، ہم کسی تخریب کاری سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، اور ہم یہ بھی بتا دیں کہ ہم تخریب کار بھی نہیں، ہم تخریب کاروں کے معاون بھی نہیں، دہشت گردی یا برائی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، مگر کوئی صدر ہو یا وزیر اعظم، گورنر ہو یا وزیر اعلیٰ، فوجی ہو یا عام آدمی، وہ یہ بھی سن لے کہ ہم قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہود و نصارہ ہمارے دوست نہیں ہیں، نہیں ہیں، نہیں ہیں، جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، ہم ان سے دوستی نہیں کر سکتے۔ اللہ صدر صاحب کہتے ہیں کہ مغرب کے خلاف بات نہ کرو۔ صدر صاحب، ہم قرآن کے پابند ہیں، تمہارے پابند نہیں۔ تم ہمیں رزق نہیں دیتے، رزق ہمیں خدا دیتا ہے۔ آج آپ کو اپنا لہجہ ٹھیک کرنا ہوگا، رویہ ٹھیک کرنا ہوگا، ورنہ آپ جیسے کئی آئے کئی گئے، خدائی کے دعوے کرنے والے چلے گئے، ان کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہے، مگر جنہوں نے نبی کے دین کے لیے قربانی دی ہے۔ بولو امام حسین کو دنیا کتنا یاد کر رہی ہے؟ ان لوگوں کو جنہوں نے دین کی خدمت کی آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں۔ آئیے اس پاکستان کو سجائیں، آئیے اس پاکستان کو سنواریں۔ کیسے؟ نبی پاک سے محبت کر کے، دین سے محبت کر کے۔ اے مسلمانوں، جب سے تم نے جہاد کو چھوڑا ہے، تم پر ذلت مسلط ہو گئی ہے، تمہیں یہود و نصارہ نے آنکھیں دکھانی شروع کر دی ہیں۔ گھر گھر میں ہر مسلمان مجاہد بن جائے، دین کا سپاہی بن جائے، اور دین کے مخالفوں کے سامنے دیوار بن جائے۔ جس دن ہم نے یہ کر دکھایا، پھر یہ زلزلے نہیں آئیں گے، پھر مصیبتیں نہیں آئیں گی، مگر ہمیں سنبھلنا ہوگا، ہمیں درست ہونا ہوگا۔ کب ہوں گے ہم کب ہوں گے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں جنت میں لے جانا چاہتے ہیں، ہم نے کیوں اپنے لیے دوزخ کے راستے چن لیے؟ کیوں ادھر جانے لگ گئے؟ میرا نبی تو وہ، لوگ کہتے ہیں وہ بھی بشر، ہم بھی بشر۔ میں نے کہا ہاں، وہ ایک انگلی کا اشارہ کرتے ہیں چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، وہ ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں ڈوبا ہوا سورج لوٹ آتا ہے، وہ سورج کو آنکھ دکھاتے ہیں وہ ڈوبنے سے رک جاتا۔ سنے ہوئے ہیں نا واقعہ؟ سنے ہیں نا؟ کہو امریکہ سے ایسا کر کے دکھا دے، سپر پاور، کسی یہودی قوت کو کہو کر کے دکھا دے،
है कोई? नहीं, नहीं, नहीं। वो अबाबील छोटे छोटे परिंदे थे, चने के बराबर। ये जो आप चने खाते, चने के बराबर उनके पांव में कंकर था। हाथी वालों पर उन्होंने वो चलाए कंकर, खाया हुआ भुस बना दिया। बनाया या नहीं? कौन सी फैक्ट्री से वो जो उनके कंकर थे तैयार हुए थे? कौन सा मटेरियल था वो? बारूद था? क्या था? अल्लाह के भेजे हुए लश्कर, छोटा सा परिंदा, चने के बराबर कंकर, वो जो इतने बड़े लश्कर के साथ आए थे, उनको खाया हुआ भुस जैसा बना दिया या नहीं बना दिया? ऊंची। आज अमेरिका धरती पे नजर आ रहा है, अल्लाह तूफान लाकर उसको मिटा दे, कर सकता है या नहीं? ऊंची। तो सुपर पावर कौन है फिर अमेरिका को क्यों कहते हो? क्यों डरते हो उससे? अमेरिका ने मदद नहीं की तो ये हो जाएगा, अमेरिका नाराज हो गया तो ये हो जाएगा। यहूदो नसारा के पिट्ठू बन गए। बदा में तुम नसारा हो, तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। टाई पहनना लाजिम, औरत का नंगा रहना लाजिम, चेहरा छुपाना जरूरी नहीं। तो फिर क्या होगा मुझे बताओ, जहां नमाज की पाबंदी नहीं, जहां शराए दीन की बातों पर मजाक किया जाता हो, जहां नशरियात में अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ बातें की जाती हो, क्या वहां पर जलजले हम रोक सकते? आज कुछ फैसला करना होगा। मैंने ये सारी तकरीर अब तक जितनी की है सिर्फ इसीलिए कि मैं और आप आज कोई फैसला कर लें। या तो आप दुनिया को पसंद कर लो और भुगतो, और अगर आपने अपने आप को मुसलमान कहलाना है तो फिर इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। कौन आपको दाढ़ी रखने से रोकता है? कौन है जो रुकावट है? कौन है जो नमाज पढ़ने से आपको रोकता है? कौन है जो आपको दीन की तरफ आने से रोकता है? शैतान या आपका नफ्स? ठीक है, ठीक है, आवाज लगा दीजिए। शैतान तो कैद है, अब अपने नफ्स से पूछो। शैतान अभी कैद है, चांद निकलेगा ईद का तो ही बाहर आएगा, अभी कैद है। इस वक्त आपका नफ्स आपको बता देगा कौन रोकता है आपको। अपने नफ्स से पूछो। इस नफ्स को मोटा करोगे तो इस नफ्स ने तो किसी को भी अच्छा नहीं किया। आपने अगर इस नफ्स को शरीयत का पाबंद न बनाया, देखो मैंने पहले भी ये बात की थी, इंसान का जिस्म एक कायनात, हाथ पांव पूरा जिस्म एक कायनात के, इसमें बादशाह है दिल। बादशाह कौन है? दिल जिधर कहता है उधर देखते हैं, जिधर जाता है उधर जाते हैं। पूरा जिस्म इस दिल के मातहत, तो ये पूरा जिस्म एक कायनात, उसका बादशाह है दिल। तो दिल का कहना मानता है पूरा जिस्म। तो ऐसे हो जाओ कि जिस्म पर दिल की हुकूमत हो, दिल पर मुस्तफा की हुकूमत हो। और जिसके दिल पर मुस्तफा की हुकूमत हो वो अहमद रजा बन जाता है, वो खतीब आजम बन जाता है। फिर उनकी बातें, उनकी अदाएं आने वालों के लिए मिसाल बन जाती है। समझ आ रही है? पूछ रहा हूं, आपका भरोसा किस पे होना चाहिए? बदर वालों ने क्या तलवारों पे भरोसा किया? तीरों पे भरोसा किया? नहीं, अल्लाह और उसके रसूल पे भरोसा किया, कामयाब हुए। आज सुन्नियों जागो, मैं और आप अपनी तमाम जितने हजरात और खवातीन, बच्चे बूढ़े, सबके सब फैसला करें कि या तो अल्लाह को राजी करना है और या अपने नफ्स को राजी करना है। फैसला कर ले आज। रहमान को राजी करना है या शैतान को राजी करना है? नफ्स को राजी करना है या रब को राजी करना है? ये आज फैसला करना। अगर आज ये वादा करके उठोगे, मौला अब तक जो खता हो गई माफ कर दे, आइंदा तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे, रब की रहमत तुम्हें आगोश में ले लेगी। और अगर ऊपर यही होगा कि ठीक है फिर अगले रमजान मस्जिद आएंगे, फिर आपसे कोई रहमत का वादा नहीं हो सकता।
लोग एतकाफ बैठते हैं 10 दिन के बाद, जब उनको मालूम हुआ ना चांद निकल आया है, ईशा भी नहीं पढ़ते, गए। अक्सर मोतकिफ ईशा भी अगले साल अब भूल जाते। ईद की नमाज पढ़ने आप सब बड़े शौक से आएंगे, वो वाजिब है। उस दिन फजर की नमाज कितने लोग पढ़ेंगे जो फर्ज है? याद है घरों में क्या हो रहा है, बाजारों में क्या हो रहा है, हमारे माहौल में क्या हो रहा है? आज एक फैसला करो। देखो, ये सोचने और समझने के मरहले अगर निकल गए हाथ से तो फिर उसके बाद सिर्फ नताइज भुगतने होंगे। मुझे और आपको कुछ फैसला करना है। हम सब फैसला करें कि हमने दुनिया के लिए रहना है या आखिरत के लिए, अल्लाह का कहना मानना है या शैतान का। ये फैसला आज आपको करना होगा। या तो नबी के गुलाम बन जाओ या नफ्स के गुलाम बन जाओ। एक फैसला कर लो, फिर जो तुम्हारे साथ होता है उसको भुगत लेना। हमने तो इतना जाना है कि जो नबी का गुलाम हो जाता है फिर वो, उसका नाम अबू बकर हो तो सिद्दीक अकबर हो जाता है, उसका नाम उमर हो तो फारूक आजम हो जाता है, उसका नाम उस्मान हो तो जिन्नूरैन हो जाता है, उसका नाम अली हो तो शेर खुदा हो जाता है, उसका नाम अबू हनीफा हो तो इमाम आजम हो जाता है, उसका नाम अब्दुल कादिर हो तो गौसे आजम हो जाता है। अल्लाह यार, फिर वो ऐसा होता है, जानवर उसका कहना मानते हैं, हवाएं उसका कहना मानती हैं, पानी उसका कहना मानता है। वो बंदा अल्लाह के नबी का गुलाम बनता है, खुदाई उसकी गुलामी शुरू कर देती है। फिर वो शेर पर सवारी करता है, हाथ में सांप का कोड़ा पकड़ता है, हवा को भी हुक्म देता है, पहाड़ों को भी हुक्म देता है, आग को भी हुक्म देता है। फिर वो मस्जिद नबवी के मिंबर से सारिया को पुकारता है, जो मीलों के फासले पर होते हैं वो उसकी आवाज भी सुनते हैं। फिर हवाएं भी कहना मानती हैं, दरिया भी, नहरें भी कहना मानती हैं। क्यों? कि वो नबी के मानने वाले हो गए। तो जो नबी का गुलाम बन जाए अल्लाह का प्यारा बन जाता है। यही पैगाम है, यही पैगाम है। पूछो ना, जरा चलो ना पीछे और जाकर देखो वो मंजर। उन लोगों ने किसी ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्रियां नहीं ली थी। ये वो लोग नहीं थे जिन्होंने लेबोरेटरीज में जाकर कोई लैब टेस्ट किए हों। ये वो लोग नहीं थे जिनके पास दुनिया के कोई सर्टिफिकेट थे। हां, इनके पास दिल था, इनके पास अकल थी। वो आए, अकल को नबी पर कुर्बान कर दिया, दिल में नबी को बसा लिया। अकल कुर्बा कुन बपेशे मुस्तफा, जो अकल को नबी पर कुर्बान कर देता है, दिल में नबी को बसा लेता है, उसकी अकल दूसरों के लिए रहनुमा बन जाती है। फिर वो बज़ाहिर बोरिये पे बैठा हो लेकिन दुनिया पर हुकूमत करता है ऐसा या नहीं? ऊंची। मुझसे बार बार कहा गया कि मैं मोजिज़ा शक्कुल कमर जरूर सुनाऊं, रद्दे शम्स, सूरज का लौटाना जरूर सुनाऊं, फलाना शेर। मैंने कहा आज मैंने पैगाम देना है। हम सब बहुत सदमे में हैं। रमजान में पाकिस्तान में ये जलजला आया, कितने लोग अभी तक मलबे के नीचे हैं, उनके जिस्म भी वहां से निकाले ना जा सके। कितने लोग हैं, कितने बच्चे माँ बाप से बिछड़ गए, कितने माँ बाप बच्चों से बिछड़ गए। कितने लोग हैं खाना नहीं मिला, उन पर कैसी आफत टूटी और हम होश में भी ना आए। हमने समझा कि चलो 2-4 रजाइयां दे दी, थोड़े से पैसे दे दिए, मामला खत्म। नहीं, हमारी कुछ और भी जिम्मेदारी है। माली इमदाद भी की है।
जानी इमदाद भी की, खून भी दिया होगा लोगों ने, और बहुत से लोगों ने जाके भी खिदमत की होगी, लेकिन अपने आप को दुरुस्त भी करना है, बाकी माहौल को साफ भी करना है। आज कौम सीसा पिलाई दीवार बन के हुकूमत के सामने खड़ी हो जाए, हमें सिर्फ कुरान और सुन्नत का कानून चाहिए, हमें सिर्फ नबी का कानून चाहिए, हमें अल्लाह का निजाम चाहिए, हमें इबलीस का निजाम नहीं चाहिए। ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना, इसमें हर बच्चे को मुजाहिद बनाओ, एक एक बच्चे को रहना चलना फिरना क्या है इस्लाम में, तैराकी सिखाओ, तीर अंदाजी सिखाओ, घुड़सवारी सिखाओ, दौड़ सिखाओ, ताकि बंदा मुजाहिद बने। और आप ये सब नहीं चाहते तो फिर बताइए, इस्लाम की बातें पूरी नहीं होंगी तो क्या हम इस्लाम में पूरे दाखिल होंगे? क्या हम रहमत हासिल करने वाले होंगे? अगर ये सब नहीं तो फिर मुझे और आपको किसी से शिकवा नहीं होना चाहिए। फिर तूफान आए या जलजले, फिर बातें नहीं करनी चाहिए। कौन नबी का सच्चा गुलाम बनेगा और कौन उनका कहना मानेगा, तो वो अपने आप को अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक बनाएगा। आज वक्त है संभलने का, आज टाइम है हम अपने आप को दुरुस्त कर लें। अगर ये टाइम निकल गया तो शायद फिर संभलने का मौका न मिले। उठो और दुनिया में छा जाओ और बता दो कि हम नबी पाक के मानने वाले हैं। अल्लामा इकबाल भी क्या खूब कहते हैं, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके उनके इश्क से पूरे दहर में दुनिया में उजाला कर दे। कैसे होगा उजाला? जबानों पर जिक्र मुस्तफा हो, जिस्म पर निजाम मुस्तफा हो और कल्ब पर हुकूमत मुस्तफा हो। बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। बस एक आधी फरमाइश आपकी पूरी करूं, मेरे इस पैगाम को ना भूलना। जरा सोचो, जिन लोगों ने नबी की सुन्नतों को अपनाया वो कामयाब हुए या नहीं हुए? जिन्होंने कुरान की आयतों पर अमल किया वो कामयाब हुए या नहीं हुए? मैं आपको ये बात सुना रहा हूं, शायद आप हैरान होंगे, पहले भी आपको सुनाई। एक इलाके में मुसलमान फौज गई, मुसलमानों का लश्कर गया, गैरों से मुशरिकों से लड़ाई के लिए, जिहाद के लिए 3 दिन हमला करते रहे, कामयाबी नहीं हुई। साथियों ने आपस में कहा क्या बात है, हम में क्या कमजोरी आ गई? तो जरा सोच देखिए, आपस में एक दूसरे से कहने लगे 3 दिन हो गए हमने मिसवाक नहीं की, 3 दिन हो गए हमने, इसलिए हमें कामयाबी नहीं हो रही। आप तो हंसेंगे मौलवी हो तो मौलवी लोग पढ़े लिखे होते तो रोना किस बात का था, वही बैकवर्ड है, रजत पसंद है, पत्थर की दुनिया में ले जाना चाहते हैं। अब देखो 3 दिन मिसवाक नहीं की तो कह रहे हैं कामयाबी नहीं हुई। यही कहेंगे ना कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी। वो सारा लश्कर टहनियां तोड़ के मिसवाक करने बैठ गया। उधर दूसरों ने देखा, वो डर के मारे भागे, कहने लगे मुसलमान अब तलवार से नहीं दांतों से हमें खाना चाहते हैं, अपने दांत तेज कर रहे। सारे भाग गए। बोलो नबी की सुन्नत पर अमल करने का फायदा हुआ या नहीं हुआ? ऊंची मैंने कहा ना, दिल पर नबी की हुकूमत हो जाए तो तब बात बनती है। कौन नबी? हमें रब मिला तो बारगाहे मुस्तफा से मिला, कुरान मिला तो बारगाहे मुस्तफा से मिला, ईमान मिला तो बारगाहे मुस्तफा से मिला। अल्लाह खुद फरमाता है नबी को ना बनाता मैं अपना रब होना भी जाहिर ना करता। तो उस नबी के हम भिखारी बने या ना बने? हम इसीलिए कहते हैं तुम ही से मांगे गे तुम ही दो। फरमाइश आप ही की पूरी कर रहा हूं, जरा साथ दे लें। तुम ही से मांगे गे तुम ही दोगे, तुम ही या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप ही फरमाते हैं इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, अल्लाह अता करने वाला है, मैं बांटने वाला हूं। आप ही ने कहा अल्लाह ताला ने तमाम खजानों की चाबियां मेरे हाथ में दे दी। आप ही ने ऐलान किया। हम इसीलिए कहते हैं तुम ही से मांगेंगे तुम।
अल्लाह फरमाता है जो नबी दे वो ले लो, अल्लाह फरमाता है जो नबी दे वो ले लो। राजी होते इस बात पर जो अल्लाह और उसके रसूल ने दिया। अल्लाह का रसूल देता है, इसीलिए कहते हैं तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम ही तुम्हारे दर से ही लौ लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा। जरा पूछो जिब्रील अमीन से, वो कहते हैं ए कमली वाले आका तेरे कुर्बान जाऊं, आप पर कुरान नाजिल ना होता, मुझे अपना हाल अपनी शान अपना अंजाम मालूम ना होता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पूछो वजूद कैसे मिला, तौबा कैसे कबूल हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से पूछो कश्ती कैसे पार लगी। हजरत इब्राहीम से पूछो आग कैसे गुलजार हुई। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम से पूछो छुरी की तेज धार से कैसे बचे। वो भी कहते हैं ये सब तुम्हारा, ये सब तुम्हारा करम है। पूछो हजरत अबू बकर से सिद्दीक अकबर कैसे बने, और हजरत उमर से पूछो फारूक आजम कैसे बने। हजरत उस्मान से पूछो जिन्नूरैन कैसे बने। हजरत अली से पूछो शेर खुदा कैसे बने। हसनैन से पूछो कि उनको सआदतें शहादतें मर्तबे दर्जे कैसे मिले। पूछो इमाम आजम से इमामत कहां से मिली। पूछो गौसे आजम से गौसियत विलायत कहां से मिली। उनकी रूह भी कहती है ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा। नहीं अपने आप से पूछो, हर शख्स पूछे अपने आप से। आला हजरत से पूछो, खतीब आजम से पूछो, अपने आप से पूछो ये सरों पे टोपियां पगड़ियां कहां से आ गईं, चेहरों पे दाढ़ियां कैसे सज गईं, ये नमाज किसने सिखा दी, ये कलिमा किसने पढ़ा दिया, ये हमें अल्लाह का सच्चा बंदा किसने बना दिया। तो हर मोमिन कहता है ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा। के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम। ये कौन आका है, ये कौन आका है गारों में सारी सारी रात हम गुलामों के लिए सजदे करते हुए गुजार देता है। या अल्लाह उम्मत गुनाहगार है उसको बख्श दे। ये कौन आका है जिसके तलवों को अर्शे मुअल्ला तरसता है। जानते हो पहचानते हो इस आका को जिसने इससे मोहब्बत की, जो उनका गुलाम बना उसे कितने दर्जे मिले हैं, कैसे कैसे मर्तबे मिले। सहाबी क्यारियां बना रहे हैं, किसी ने कहा तुझे पता है मदीने में क्या हो गया, क्या हो गया? अल्लाह के नबी पर्दा फरमा गए हैं, उनका विसाल हो गया। सहाबी क्यारियां बनाते बनाते अल्लाह से कहता है या अल्लाह अब मैं मदीने जाऊंगा, मुझे तेरा नबी जमीन पर चलता फिरता नजर नहीं आएगा, मस्जिद नबवी में इमामत करता हुआ मिंबर पर बयान फरमाता हुआ नजर नहीं आएगा? अगर ऐसा है तो मौला फिर मैं किसी और को देखना नहीं चाहता, मुझे नहीं देखनी तेरी ये दुनिया, मेरी बीनाई ले ले। मोहब्बत का एक अंदाज ये भी है, मोहब्बत का एक अंदाज ये भी है। एक अंदाज हजरत अली के पास, एक अंदाज किसी और सहाबी के पास, एक अंदाज किसी और के पास। कोशिश करो हमारे पास भी कोई अंदाज आ जाए। वो लोग जिन्होंने अंदाज अपनाए
उनमें एक हजरत सैयदना जुनैद बगदादी भी है। हजरत गौस पाक के पीरों में नाम आता है। शान अल्लाह ने गौस पाक को ज्यादा दी है। अबुल कासिम जुनैद बगदादी हजरत सर्री सकती के भांजे हैं, शाही पहलवान हैं। बादशाह का ऐलान है, जो जुनैद को पछाड़ दे, कुश्ती में हरा दे, उसको मुंह मांगा इनाम मिलेगा। एक लागर, कमजोर, फाकों का मारा हुआ शख्स बगदाद में आया, मुझे जुनैद से लड़ना है। लोगों ने देखा इसको शायद मौत लाई है, इसकी तो अपनी पसलियां गिनी जा सकती हैं, जुनैद का मुकाबला ये कैसे करेगा। बादशाह के सामने बात पेश हुई। बादशाह ने भी देखा और कहा इसको मशवरा दो, मरने के और बहुत से तरीके हैं, जुनैद से ही क्यों मरना चाहता, उसका थप्पड़ नहीं सह सकेगा। लेकिन उसने कहा मुझे दाव आते हैं, उसको सामने लाओ। तारीख तय हो गई, मैदान तय हो गया। कुश्ती से पहले, मुकाबले से पहले वो कमजोर आदमी जुनैद के पास आता है, कहता है जुनैद मैं पहलवान नहीं, मुझे लड़ना भी नहीं आता। लड़ना तो क्या, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। मेरी 2 बेटियां हैं, जवान हो गई हैं, उनकी शादी करनी है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे ना होने की वजह से बच्चियों को देखता हूं, घर नहीं बैठा जाता, बाहर निकलूं तो चैन नहीं पड़ता। मेरे लिए तो दुनिया मुश्किल हो गई, मैं तो मरना ही चाहता हूं। या तो बच्चियां मेरे सामने इज्जत के साथ अपने घर की हो जाए, या फिर मैं मर जाऊं तो फिर जो उनके साथ हो सो हो। जुनैद कहते हैं तुमने कहीं से किसी से कुछ मांग क्यों नहीं लिया, भीख मांग लेते, चंदा कर लेते। कहा उसने कि मशवरा वाकई तुम्हारा आसान भी है और यही मशवरा हो सकता है, मगर मैं तो चंदा भी नहीं कर सकता, मैं तो सदका भी नहीं मांग सकता। मैं नबी की औलाद हूं, मैं सैयदजादा हूं, किस मुंह से मांगू, हमारे लिए तो सदका भी हराम है। जुनैद, बादशाह ने ऐलान किया जो तुम्हें हराएगा उसको मुंह मांगा इनाम मिलेगा। अगर आज नबी की बेटियों की इज्जत की खातिर हार जाओ तो नबी की बेटियों का घर बस जाएगा, उनके घर बस जाएंगे, 2 पैसे मिल जाएंगे। और अगर तुम नहीं चाहते तो देखो मैं मरना ही चाहता हूं, तुम अपनी इज्जत बाकी रखो, जो होगा देखा जाएगा। ये कह के वो अपने किनारे चला गया। जुनैद अपने किनारे, मुकाबले का ऐलान हुआ, देखने वाले देख रहे हैं। वो जुनैद जिसके नाम से बड़ा पहलवान कांपता है, आज उसमें लगता है हिम्मत ही नहीं। जुनैद सोच रहे हैं अगर मैं हारता हूं ये सब देखने वाले मुझे बुरा कहेंगे, जीतता हूं तो नबी को क्या मुंह दिखाऊंगा। मुश्किल में आए, वह मुकाबला शुरू हुआ। हजरत जुनैद जोर नहीं लगा रहे, उस कमजोर आदमी ने तरीके से जुनैद को गिरा दिया, सीने पे चढ़ के बैठ गया। लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, लो जी इस आदमी ने जुनैद को हरा दिया। थोड़ी देर पहले जुनैद जुनैद के नारे लग रहे थे, अब कोई जुनैद को पूछ नहीं रहा, सब उस कमजोर को कंधों पे उठाए हुए। बादशाह ने मुंह मांगा इनाम दे दिया। जुनैद के साथ अब कोई चलने को तैयार नहीं, जो हर वक्त उनके इर्द गिर्द बैठे कोई बैठने को तैयार नहीं। रोते रोते अपने ठिकाने पे आए, आके बैठ के भी रोते रहे। रोते रोते कहीं आंख लग गई, नींद आ गई, किस्मत जाग गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए, फरमाया जुनैद रोता क्यों है, तूने तो आज वो काम किया है कि तुझे वो मर्तबा मिला जो अच्छों को नहीं मिलता। तूने मेरे बेटे की इज्जत की है, अल्लाह ने तुझे औलिया के गिरोह का सरदार बना दिया है। तूने नबीजादे की इज्जत की है, नबीजादियों का ख्याल रखा। अगले दिन बादशाह के दरबार में जुनैद पेश हुए। बादशाह ने कहा जुनैद हम जानते हैं तुम लड़े नहीं हो, तुमने मुकाबला नहीं किया, क्या बात थी, क्या हुआ। जुनैद कहते हैं मैं शिमर नहीं था कि नबी के बेटे के सीने पे बैठ जाता, मैं यजीद नहीं था क्या उसको रुसवा करता। मैंने नबी के बेटे की इज्जत रखी।
देखिए कितना उनको शान मिली, कितना मकाम मिला, कितना दर्जा मिला। आज अगर हम भी नबी से, उनकी निस्बतों से, उनकी सुन्नतों से प्यार करेंगे, हमें क्या कुछ मिलेगा? हमारा रब भी राजी होगा, ये दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी। कोई पता नहीं किस वक्त मर जाना है। लहद में इश्क़े रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। बस अपने सीने को शम्ए मुस्तफवी से रोशन रखना, नबी से नाता ना टूटने देना। देखना कोई आवाज और सुनो ना सुनो, नबी की आवाज जरूर सुनना, उनकी मोहब्बत की बातें सुनना, उनकी नात सुनना। जो उनके खिलाफ बात करे वो मेरा तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो इस्लाम वाला नहीं है। आज हम सब अहद करें, या अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत में अपना सच्चा अच्छा पक्का बंदा बना ले, अपने नबी का गुलाम बना ले। मौला तेरी मखलूक है, तेरे नबी का वास्ता देकर तुझे कहते हैं ये बलाएं उठा ले। इस मुल्क पर रहम फरमा दे, हम सबकी खताएं मुआफ फरमा दे। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत में कामयाब फरमाए। मुंह से कोई गलत बात निकली हो तौबा करता हूं, माफी चाहता हूं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब